आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं एनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। प्राइम टाइम में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुल्क की बिगड़ती मईशत के लिए मोदी हुकूमत की बद इंतजामी जिम्मेदार, साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह का बयान। नहीं है मुल्क में मंदी, कर रही है हुकूमत हर शोबे की मदद, वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन का पलटवार। बिना सब्सिडी के एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 15 रुपए 50 पैसे का इजाफा। हैदराबाद में सिलेंडर की कीमत हुई 644 रुपए। तमिली साई सुंदराजन बनी तेलंगाना की नई गवर्नर। बंडारू दत्तात्रेय बनाए गए हिमाचल प्रदेश के गवर्नर। और तेलंगाना असेंबली के बजट सेशन का 9 सितंबर से होगा आगाज। अब खबरें तफसील से। साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मुल्क की मईशत में गिरावट पर मोदी हुकूमत पर शदीद हमला करते हुए कहा कि हिंदुस्तानी मईशत में आगे बढ़ने की सलाहियत है, लेकिन मोदी हुकूमत की इख्तिसादी बदइंतजामी के सबब ये आज मंदी का शिकार है। डॉक्टर सिंह ने इतवार को जारी एक बयान में कहा कि मुल्क का इख्तिसादी बहरान बदइंतजामी का शिकार हुआ है। हुकूमत को किसी तरह की सियासत किए बगैर मुल्क को इख्तिसादी बहरान से बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मुल्क तवील इख्तिसादी बहरान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मनमोहन सिंह ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सिर्फ 0.6% की ग्रोथ हुई, जो परेशान कुन है। हमारी मईशत कुछ लोगों की गलतियों से नहीं उभर पा रही है। Our farmers are not receiving adequate prices and rural incomes have declined. The low inflation rate that the Modi government likes to showcase comes at the cost of our farmers and their income by inflicting misery on over 50% of India's population. Institutions are under attack and their autonomy is being eroded. The resilience of the Reserve Bank will be tested after its record transfer of rupees 1.76 lakh crore to the government, which claims that it does not have a plan on what it will do with this windfall. In addition, the credibility of India's data has come under question under this government. Budget announcements and rollbacks have shaken the confidence of international investors. India has not been able to increase the exports to take advantage of opportunities that have arisen in global trade due to geopolitical realignment. Such is the state of economic management under the Modi government. Our youth, our farmers, and our farm workers, entrepreneurs, and the marginalized sections deserve better. India cannot afford to continue down this path. Therefore, I urge the government to put aside vendetta politics and reach out to all sane voices and thinking mind to steer our economy out of this man. वहीं मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने मनमोहन सिंह के इस बयान पर कोई तबसरा करने से इनकार कर दिया और कहा कि हुकूमत हर उस शोबे की मदद कर रही है जिसे उसकी जरूरत है। That wherever there is a need for government to come up with facilitation and support, we are willing to hear those sectors and respond to them. And I'm not of the view that just the automobile sector, but every sector which needs to have a consultation with us, we have welcomed them. We are all years we are hearing them, we are responding to them. After hearing them, we are also responding. And that is why even in my first tranche of announcements, I even on that very day said I will come with more, because the continuation of consultation is an ongoing process with some of the other sectors too. So even for them, we shall be coming and responding. But however, the data on jobs in India, even as much as was collected till before the government came in 2014, till before the government has come back again in 2019, have all concentrated on the formal sector only. And that is something which I'm not stating today. Everyone who deals with data, with statistics knows that. So, India informal sector employment has not been appropriately or exhaustively documented. We should also keep that in mind while we're talking about
sectors where every sector is suffering. There are also informal sector in which jobs have also not been calculated or documented. I am conscious of both formal and informal. कांग्रेस के सीनियर लीडर और मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला दिग्विजय सिंह ने एक मुतनाज़िया बयान दिया। उनके इस बयान पर सियासी हंगामा आराई शुरू हो सकती है। हफ्ते को एक प्रोग्राम में दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI के लिए आज के वक्त में मुसलमान से ज्यादा गैर मुस्लिम जासूसी करते हैं। बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी ISI से पैसा ले रहे हैं, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और एक बात और बताऊं, पाकिस्तान से ISI के लिए जासूसी मुसलमान कम कर रहे हैं, गैर मुसलमान ज्यादा कर रहे हैं, इस बात को भी समझ लीजिए। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने मरकजी रियासती हुकूमतों को तजवीज़ पेश की है कि वो मसाइल से बालातर होकर रबसाजी के इनकलाब पर तवज्जो मरकूज करें। उन्होंने मरकजी वज़रा सुरेश अंगाड़ी, किशन रेड्डी और दूसरों के साथ गुडूर और विजयवाड़ा के दरमियान इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन को गुडूर रेलवे स्टेशन पर झंडी दिखाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी रिश्वत के खात्मे और रकमी मामलात में ताख़ीर को रोकने में अहम जरिया बन गई है। रास रकम की मुंतकली का मतलब डिजिटल इनकलाब के सबब सरकारी प्रोग्राम के बेशतर इस्तेफादा कुनिंदगान को फ़ायदा पहुँचाना है। उन्होंने कहा कि तकरीबन 400 स्कीमों का फ़ायदा 36 करोड़ अफराद को हासिल हो रहा है। राब्ता हुकूमत का असल मकसद है। साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने इनकलाब बर्पा किया था और हमको चाहिए कि इसी पर तवज्जो मरकूज़ करें। मुल्क का मुस्तक़बिल डिजिटल पेश कदमी से ही मुमकिन है, जो हुकूमत की जानिब से डिजिटल इंडिया मुहिम के तौर पर शुरू किया गया है, ताकि शहरियों को जहाँ भी इंटरनेट राब्ता हो तो खिदमात फराहम किए जा सकें। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि कई ताजिर सरमायाकारी के लिए आगे आ रहे हैं। अराजी, 24 घंटे बरक़ी की सरबराही, पानी और बड़े पैमाने पर मवासलात में बेहतरी के ज़रिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाए। उन्होंने कहा कि रिश्वत से पाक माहौल से ही शफ़ाफ हुक्मरानी मुमकिन है। हुकूमत के फ़ायदे बग़ैर किसी रुकावट और रिश्वत के इम्कान के बग़ैर इस्तेफादा कुनिंदा तक पहुँचाने चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की तकरीबन 2,50,000 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से डिजिटल तौर पर मरबूत किया गया है। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि इस नई ट्रेन खिदमत से आवाम को सहूलत मिलेगी और लोगों की रकम भी बचेगी। हिंदुस्तान में बुलेट ट्रेन अगला प्रोजेक्ट है और हाल ही में शुरू करदा वंदे मातरम एक्सप्रेस एक सेमी एक्सप्रेस ट्रेन है, जिसको मेक इन इंडिया के हिस्से के तौर पर बनाया गया है। कर्नाटका के साबिक़ वज़ीर आला HD कुमारस्वामी को झटका देते हुए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने बरसर इख्तिदार भारतीय जनता पार्टी की रियासती हुकूमत की गुजारिश पर कई नामालूम अफसर शाहों और दीगर लोगों के खिलाफ मुबैना तौर पर फ़ोन टैपिंग कराने का मामला दर्ज किया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कानून के कई दफ़ात के तहत CBI ने मामला दर्ज किया है। कर्नाटका हुकूमत की तरफ से 20 अगस्त को लिखे गए एक खत की बुनियाद पर एजेंसी ने नामालूम अफसरशाहों और दीगर लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। रियासती हुकूमत के हुक्म के मुताबिक CBI से कहा गया है कि वो बरसर इख्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ से मुताल्लिक़ रहनुमाओं के सपोर्टर्स और रिश्तेदारों के फ़ोन टैपिंग कराने के मामले में सरकारी मुलाजिमीन के किरदार की जाँच करें। अहकामात में मज़ीद कहा गया है कि रियासत में गैर कानूनी तौर से कराई गई फ़ोन टैपिंग की वजह से ऐसा माना जा रहा है कि कई आला सियासी रहनुमाओं और सरकारी मुलाजिमीन की अहम और निजी मालूमात अफशा हो गई हैं और इससे हक़ राज़दारी की खिलाफ वर्जी का इम्कान है। रियासत के उस वक्त के वज़ीर आला कुमारस्वामी पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपनी मुद्दतकार के दौरान उस वक्त लोगों के फ़ोन टैप कराए जब उनकी हुकूमत गिरने के कगार पर थी और उनकी हुकूमत को हिमायत दे रहे 17 अरकान असम्बली ने इस्तीफ़ा दे दिया था। कुमारस्वामी ने तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के आखिरी दिन 31 अगस्त को 49,29,121 लोगों ने ITR दाखिल किए। एक दिन में इतने ज़्यादा रिटर्न भरे जाने का ये एक रिकॉर्ड है। गुज़िश्ता बरस आखिरी दिन 34,95,093 लोगों ने रिटर्न भरा था। इस तरह गुज़िश्ता बरस के मुकाबले इस आखिरी दिन रिटर्न भरने वालों में 41% का इजाफा दर्ज किया गया है। सितंबर का महीना शुरू होते ही अवाम पर महंगाई की मार पड़ी है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 सितंबर से बिना सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर की कीमत 15 रुपये 50 पैसे बढ़ा दी है। मुल्क की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की जानिब से ये जानकारी दी गई है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में बगैर सब्सिडी वाला 14.2 kg का सिलेंडर 590 रुपये का मिलेगा। कलकत्ता में सिलेंडर 601 के बजाय
₹616.50 का होगा। मुंबई में ₹546.50 के बजाय ₹562 और चेन्नई में ₹590.50 के बजाय ₹606.50 में मिलेगा। वहीं कमर्शियल 19 केजी के एलपीजी सिलेंडर की कीमत दिल्ली में ₹1044.50, कलकत्ता में ₹1114.50, मुंबई में ₹1008.50 और चेन्नई में ₹1174.50 है। अगस्त में बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत ₹62.50 कम की गई थी। घरेलू गैस की कीमत में बढ़ोतरी के साथ ही आज सीएनजी की कीमतों में 50 से 55 पैसे फी किलो की बढ़ोतरी की गई। यह कीमतें हैदराबाद में भी बढ़ी हैं। पिछले महीने जहां एलपीजी सिलेंडर की कीमत ₹628 थी, वहीं आज ये बढ़कर ₹644 हो गई है, यानी ₹16 का इजाफा हुआ है। ऑटो गैस की कीमत में 66 पैसे का इजाफा हुआ है और आज इसकी कीमत ₹37.05 पर केजी है। लेकिन हैदराबाद में सीएनजी की कीमत में पिछले 3 महीनों से कोई इजाफा नहीं हुआ है और आज भी इसकी कीमत ₹64.92 फी किलो है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने 4 नए गवर्नर मुकर्रर किए हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कलराज मिश्रा का तबादला करके उन्हें राजस्थान का नया गवर्नर मुकर्रर किया गया है। राष्ट्रपति भवन की जानिब से इतवार को जारी रिलीज के मुताबिक डॉक्टर टी सुंदरराजन को तेलंगाना का नया गवर्नर मुकर्रर किया गया है। बंडारू दत्तात्रेय को हिमाचल प्रदेश का नया गवर्नर मुकर्रर किया है, जबकि आरिफ मोहम्मद खान केरला और भगत सिंह को महाराष्ट्र के गवर्नर मुकर्रर किए गए हैं। उनके तकर्रुरी ओहदा कबूल करने पर लागू होगी। तमिलनाडु बीजेपी की सरबराह तमिली सुंदरराजन को मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना रियासत की नई गवर्नर मुकर्रर किया है। वो ESL नरसिम्हन की जगह लेंगी। ये एक महज इत्तेफाक है कि ESL नरसिम्हन की तरह उनका ताल्लुक भी तमिलनाडु से है। नरसिम्हन इस ओहदे पर गुज़िश्ता 10 बरस से थे। राजन ने क़ब्लजी हल्का लोकसभा थोटोकोडी से इंतखाबात में कनीमोई के खिलाफ नाकाम मुकाबला किया था। उन्होंने 2 मरतबा असम्बली और 2 मरतबा पार्लिमानी इंतखाबात में भी मुकाबला किया था, ताहम उनको शिकस्त उठानी पड़ी थी। सुंदरराजन एक बेहतरीन मुखर्रिर होने के साथ साथ तर्जुबा निगार भी हैं, जिन्होंने क़ब्ल अज़ीम बीजेपी के कई सीनियर कायदीन की तकारीर का तर्जुमा तमिल ज़बान में किया था। मरकज़ ने नए गवर्नर्स के तकर्रुर के अहकाम जारी किए हैं, ताहम तेलंगाना के मौजूदा गवर्नर ESL नरसिम्हन को कोई नई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। नरसिम्हन का इंतखाब मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के गवर्नर के तौर पर 2010 में उस वक्त किया गया था जब तेलंगाना को रियासत का दर्जा बनाने के लिए चलाई जा रही तहरीक अपने उरूज पर थी। वो छत्तीसगढ़ के गवर्नर थे, ताहम उनको मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की ज़ायद जिम्मेदारी दी गई थी। बादअज़ा उन्हें आंध्र प्रदेश की तकसीम के जरिए तेलंगाना की तश्कील के बावजूद दोनों तेलुगु रियासतों के मुश्तरका गवर्नर के तौर पर बरकरार रखा गया था। 5 साल तक वो 2 रियासतों के गवर्नर थे। ESL नरसिम्हन को 2014 में मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के जरिए तेलंगाना की तश्कील के बावजूद दोनों तेलुगु रियासतों का मुश्तरका गवर्नर होने का एजाज़ हासिल रहा। 2009 में उन्हें मुत्तहिदा AP का गवर्नर मुकर्रर किया गया था। जारिया साल जुलाई में मरकजी हुकूमत ने आंध्र प्रदेश के गवर्नर के तौर पर उड़ीसा के बीजेपी के सीनियर कायद विश्वभूषण हरिचंदन को मुकर्रर किया था, जिसके बाद नरसिम्हन सिर्फ तेलंगाना के गवर्नर ही रह गए थे। नरसिम्हन ने AP की तकसीम के जरिए तेलंगाना की तश्कील के बाद पैदाशुदा मसाइल के हल में अहम रोल अदा किया था। उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर के अलावा छत्तीसगढ़ के गवर्नर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी थी। तमिली सौंदरराजन पेशे तिब से सियासत में दाखिल हुई हैं। वो तमिलनाडु में बीजेपी की सीनियर कायद और रियासती सदर रही हैं। उनकी पैदाइश कन्याकुमारी ज़िले में 2 जून 1961 को हुई। उनके वालिद सरकर्दा कांग्रेसी कायद के आनंद थे, जो पार्लियामेंट के रुकन भी रहे। उनके शोहर तमिलनाडु में सरकर्दा डॉक्टर हैं। उन्होंने शोहर के मेडिकल रिसर्च काउंसिल में रुकन के तौर पर भी काम किया है। उन्होंने मद्रास मेडिकल कॉलेज से MBBS की तकमील की थी। MGR मेडिकल कॉलेज से उन्होंने PG की तकमील की। बादअज़ा उन्होंने कनाडा में सोनोलॉजी FET थेरेपी की खुसूसी तरबियत हासिल की। सियासत में आने से कबल वो रामचंद्र मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही थी। वालिद कांग्रेस के सीनियर कायद होने की वजह से इब्तिदा ही से वो सियासत के बारे में मालूमात रखती थी। मद्रास मेडिकल कॉलेज में तालीम के दौरान वो तुलबा तंजीम की लीडर भी बनाई गई थी। वालिद के कांग्रेस में होने के सबब उनके तजुर्बे से उन्होंने इस्तेफादा किया। बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करने के बाद उन्होंने मुख्तलिफ ओहदों पर काम किया। 1999 में जुनूबी चेन्नई ज़िले के मेडिकल शोबे की सेक्रेटरी, 2001 में रियासती मेडिकल शोबे के जनरल सेक्रेटरी, 2005 में मेडिकल शोबा जुनूबी हिंद की ऑल इंडिया सेक्रेटरी, 2007 में पार्टी की जनरल सेक्रेटरी, 2010 में तमिलनाडु बीजेपी की सदर और 2013 में कौमी जनरल सेक्रेटरी के तौर पर उन्होंने खिदमत अंजाम दी। उनको आज मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना का गवर्नर मुकर्रर किया। वो तेलंगाना की पहली खातून गवर्नर हैं।
तेलंगाना के नवमुंतखब गवर्नर के ऐलान के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने राजभवन पहुंचकर ESL नरसिम्हन से मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आला ने गवर्नर नरसिम्हन से कहा कि उन्होंने इतने साल से तेलंगाना की तरक्की में भरपूर ताउन किया है। उन्होंने गवर्नर से इज़हार तशक्कुर किया। हिमाचल प्रदेश का गवर्नर मुकर्रर करने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से इज़हार तशक्कुर करते हुए साबिक़ मरकज़ी वज़ीर व बीजेपी के सीनियर कायद बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि वो दस्तूर के मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। 12 जून 1947 को दत्तात्रेय की पैदाइश हुई थी। वो सिकंदराबाद लोकसभा हल्के से 4 मरतबा मुंतखब हुए। 1996 से 98 के दौरान उन्हें गैर मुनक़सिम आंध्र प्रदेश में बीजेपी का सदर मुकर्रर किया गया था। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में मरकज़ी ममलिकत वज़ीर के तौर पर खिदमत अंजाम दी थी। 2014 में नरेंद्र मोदी की काबीना में उन्होंने वज़ीर लेबर व रोज़गार के तौर पर खिदमत अंजाम दी थी। उन्हें सितंबर 2003 से मई 2004 के दौरान वज़ीर शहरी हवाबाजी व इंसदाद गुर्बत के तौर पर मुकर्रर किया गया था। 1960 की दहाई में दत्तात्रेय RSS के प्रचारक थे। 2019 के इंतखाबात में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था। 1970 में हुई इमरजेंसी के दौरान उनको गिरफ्तार किया गया था। दत्तात्रेय ने कहा कि मोदी काबीना से उन्हें निकाले जाने के बाद उनसे गवर्नर का ओहदा का वादा नहीं किया गया था। गुज़िश्ता इंतखाबात में हिस्सा न लेने पर उन्हें कोई अफसोस नहीं है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के BSc ग्रेजुएट दत्तात्रेय लोकसभा के रुकन के तौर पर अपनी मियाद के दौरान पार्लिमानी कमेटी के भी रुकन थे। रियासत की हुक्मरान TRS के कारगुजार सदर KTR और बीजेपी तेलंगाना के तर्जुमान कृष्णा सागर राव ने दत्तात्रेय को गवर्नर मुकर्रर करने का खैर मकदम किया। इस सिलसिले में KTR ने ट्विटर पर दत्तात्रेय को मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना कानून साज असेंबली का बजट इजलास 9 सितंबर से शुरू होने वाला है। ज़राए के मुताबिक जारिया साल के अवाइल में हुकूमत ने इंतखाबात के पेश नज़र अलीउल हिसाब यानी वोट ऑन अकाउंट बजट को मंजूरी दी थी। 9 सितंबर से शुरू होने वाले असेंबली इजलास में मुकम्मल बजट को मंजूरी दी जाएगी। यह बजट माली साल 2019-20 के लिए होगा। ज़राए ने मजीद बताया कि 9 सितंबर को 11:30 बजे दिन कानून साज असेंबली और कानून साज काउंसिल का मुश्तरका इजलास होगा। इस इजलास से गवर्नर खिताब करेंगे। बजट इजलास कितने अय्याम का होगा उसका फैसला असेंबली की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में तय पाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक बजट इजलास में TRS हुकूमत कई अहम बिल्स की मंजूरी देने का फैसला किया है, जिसमें नए रेवेन्यू एक्ट के साथ दीगर बिल्स को मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि TRS पार्टी में कायदीन के दरमियान ओनरशिप का झगड़ा चल रहा है। पार्टी के ओनरशिप के झगड़े में अवामी सेहत और अवामी बहबूद के काम नज़रअंदाज हो रहे हैं। उन्होंने आज भोपालपल्ली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दौरा करते हुए वहां दी जाने वाली सहूलतों का जायजा लिया। उनके हमरा साबिक वजीर D श्रीधर बाबू, रुकन असेंबली सीतक्का और दूसरे मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रियासत में वबाई इमराज डेंगू की वजह से अवाम काफ़ी परेशान है। ख़ास तौर पर गरीब अफराद को सरकारी दवाखानों में इलाज की कोई सहूलत फराहम नहीं की जा रही है। TRS हुकूमत सेहत के शोबे को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर रही है। रियासती वज़रा अवामी मसाइल की यकसुई के बजाय TRS पार्टी की मिल्कियत पर नित नए दावे कर रहे हैं। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 250 बिस्तरों की सहूलत होती है, लेकिन यहाँ सिर्फ 6 बिस्तरों की सहूलत फराहम की गई। उन्होंने कहा कि भोपालपल्ली को ज़िले का दर्जा देकर 3 साल का अरसा हो गया, लेकिन यहाँ के दवाखानों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अब तक तब्दील नहीं किया गया। इस हॉस्पिटल में कोई बुनियादी सहूलतें नहीं हैं। यहाँ मरीज़ इलाज के लिए रुजू होने से डर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में इनपेशेंट ही नहीं है। हॉस्पिटल में MRI, CT स्कैन, एक्सरे प्लान, ECG की भी सहूलत नहीं है। जजगियों के लिए ज़िले से सैकड़ों खवातीन इतनी आती हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन थिएटर की हालत स्टोर रूम की तरह है। हॉस्पिटल में लैब टेक्नीशियन भी नहीं है। भट्टी विक्रमार्का ने फौरी तौर पर भोपालपल्ली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तमाम सहूलतें फराहम करने का हुकूमत से मुतालबा किया। అద్భుతాలు సృష్టిస్తున్నాం, అన్ని వసతులు కల్పిస్తున్నాం అని ప్రగల్భాలు పలికేటువంటి ముఖ్యమంత్రికి ఈ భోపాల్పల్లిలో ఉన్నటువంటి ఈ ఆసుపత్రి వారికి చెంపపెట్టు కావాలి. ఈ రాష్ట్రంలో ఏం జరుగుతుందో దీని ద్వారా రాష్ట్ర ప్రజలకు తెలియాలనే ఈరోజు మీ దగ్గర మీ అందరితో మాట్లాడుతూ ఉన్నాం. ఇది కేవలం జిల్లా కేంద్రంలో ఉన్న ఈ ఆసుపత్రి 6 పడకల ఆసుపత్రిగా మాత్రమే ఇంకా ఉంది. ఇక్కడ 250 పడకల ఆసుపత్రి, ఎక్కడ 6 పడకల ఆసుపత్రి. ఒక్కసారి ఆలోచించండి. ఈ 6 పడకల ఆసుపత్రిలో కూడా ఇప్పుడు ఆపరేషన్ థియేటర్ చూసాం. మీరందరూ కూడా వచ్చారు, మీరు కూడా చూశారు మాతో పాటు. ఆ ఆపరేషన్ థియేటరు స్టోర్ రూమ్ గా మార్చింది.
ఇంతకంటే సిగ్గుచేటు ఇంకోటి ఏది ఉండదు. ఈ 6 పడకల ఆసుపత్రిలో ఆపరేషన్ థియేటర్ స్టోర్ రూమ్ గా మార్చారు. ఆ 6 పడకలు కూడా ఒక్కళ్ళు కూడా దీంట్లో అడ్మిట్ కావడానికి రావట్లేదు, ఎవరు లేరు. ఓపీ చూస్తే ఒక్కళ్ళు ఉన్నారు. జిల్లా కేంద్ర ఆసుపత్రిలో ఈరోజు ఒక్కళ్ళు ఓపీ వచ్చింది, ఒక మహిళ. అంటే ఈ ఆసుపత్రి మీద ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలకు ఉన్న నమ్మకం దీని ద్వారా అర్థమవుతుంది. ఒక్క ఇన్పేషెంట్ లేరు, ఒక్క వాళ్ళు ఓపీగా ఉన్నారు. పోనీ 6 పడకల ఆసుపత్రికి ఉండాల్సిన డాక్టర్లు అయినా ఉన్నారా అంటే వాళ్ళు కూడా లేరు. ఒక డాక్టర్ ఏమో నీలోఫర్లో పనిచేస్తున్నారట, ఇక్కడ ఉన్నాడు. ఇద్దరు పనిచేయడానికి ఇక్కడ ఉంటుంది. ఒక డాక్టర్ ఈరోజు వచ్చారు. సంబంధించి పూర్తి సమాచారం వారు డాక్టర్ కిరణ్మయ్య గారే ఏదో పేరు చెప్పి బోర్డు పెట్టారంట. వారు ఇస్తారా అంటే ఉన్నారా అని అడిగితే ఇక్కడ లేరు సార్, హైదరాబాద్ నీలోఫర్లో ఉన్నారు అన్నారు. అంటే సమాచారం కోసం హైదరాబాద్ నీలోఫర్ పోవాలి ఇప్పుడు మనం. అది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. అట్లాగే ఒక లేడీ డాక్టర్ జిల్లా కేంద్ర ఆసుపత్రుల్లో మహిళలు ప్రసూతి కోసం వచ్చేటువంటి వాళ్ళకి కనీసం ఒక లేడీ డాక్టర్ కూడా ఇక్కడ లేదు. గైనకాలజిస్ట్ ఒక్కళ్ళు అంటే ఒక్కళ్ళు కూడా లేదు. అట్లాగే నో ల్యాబ్ టెక్నీషియన్, నో ఎక్స్రే ప్లాంట్, నో ఈసీజీ, నో సిటీ స్కాన్, నో ఎంఆర్ఐ. ఇంత దుర్భరమైన పరిస్థితి బహుశా ఎక్కడ చూడలేదు. అట్లాగే ఈ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా కుక్క కాటుకి, కోతుల కాటుకి ఎక్కువ పేషెంట్లు వస్తా ఉంటే కనీసం వాళ్ళకి మందు వేయటానికి, ఇంజక్షన్ వేయడానికి సిరంజులు కూడా లేవండి. ఆ సిరంజులు రాసిస్తే బయట పోయి కొనుక్కొని వస్తే తప్ప వీళ్ళు మందు ఇచ్చే పరిస్థితులు లేదు. ఇది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. అట్లాగే ల్యాబొరేటరీ చూశాను నేను, హాస్పిటల్లో ఉన్నటువంటి ల్యాబొరేటరీ. నీళ్లు రావట్లేదు, దాంట్లో వాడకం లేదు, వాసన వస్తా ఉంది. बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट निजामाबाद डी अरविंद ने कहा कि टीआरएस पार्टी में तेलंगाना तहरीक में सरगर्म हिस्सा लेने वालों को नजरअंदाज किया जा रहा है। इसकी वाज़ेह मिसाल हालिया दिनों में वजीर सेहत ईटला राजेंद्र का बयान है। जगतियाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डी अरविंद ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से बढ़कर वजीर सेहत ईटला राजेंद्र और साबिक वजीर हरीश राव ने तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लिया था और तेलंगाना के हुसूल के लिए राजेंद्र और हरीश राव ने काफ़ी जद्दोजहद की। लेकिन बदकिस्मती से तेलंगाना तहरीक में संजीदगी से हिस्सा लेने वाले कायदीन को टीआरएस पार्टी वक्फे से दूर कर रही है। उन्होंने कहा कि टीआरएस की हालत दिन ब दिन अबतर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक से दूर रहने वाले वजीर दयाकर राव ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को टीआरएस और गुलाबी परचम का सरबराह करार दिया। इससे यह वाज़ेह होता है कि टीआरएस पार्टी में क़यादत के नाम पर कायदीन में इख्तलाफात पाए जाते हैं। रुकने पार्लियामेंट बीजेपी ने कहा कि मुल्क भर में यूरिया की सरबराही बाकायदा तौर पर जारी है, लेकिन तेलंगाना में यूरिया की किल्लत देखी जा रही है। इसके लिए वजीर ज़राअत जिम्मेदार हैं। रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि SRSP प्रोजेक्ट के जरिए काश्त करने वाले किसान पानी के मसले पर काफ़ी परेशान हैं। फिलवक्त प्रोजेक्ट में 1060 क्यूसिक्स पानी दाखिल हो रहा है, लेकिन ओहदेदार गलत इतलात फराहम करते हुए प्रोजेक्ट से पानी छोड़ने में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। अरविंद ने कहा कि चंद साल कबल प्रोजेक्ट में 1040 क्यूसिक पानी दाखिल होने के बावजूद यहाँ से सिद्दीपेट को पानी मुंतकिल किया गया था। उन्होंने प्रोजेक्ट से फौरी तौर पर पानी छोड़ने का मुतालबा किया। 1 सितंबर यानी आज से 15 अक्टूबर तक अवाम अपने नाम वोटर लिस्ट में चेक कर सकते हैं। जीएचएमसी दफ्तर में रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने पोस्टर की रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रजत कुमार ने कहा कि गुज़िश्ता सितंबर तक जारिया साल मार्च तक 45 लाख वोटर्स का इंदराज हुआ है। उन्होंने कहा कि लोग जिस तरह ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड के लिए जुस्तजू करते हैं, इसी तरह अपने नाम के इंदराज के बाद वोटर लिस्ट में अपने नामों की जांच कर लें। इस बार इलेक्शन कमीशन ने वोटर शनाख्ती प्रोग्राम शुरू किया है। आवाम से अपील की है कि वो इससे इस्तेफादा करें। इस मौके पर जीएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार ने कहा कि हर वोटर को अपने नामों और दीगर तफसीलात की तस्दीक के लिए मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए।
शहर के मज़ाफ़ाती इलाके सुल्तानपुर में मेडिकल डिवाइसेस पार्क के क़याम का संग बुनियाद रखा गया। रियासती वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने वज़ीर लेबर CH मल्ला रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट के प्रभाकर रेड्डी और दूसरों के साथ मिलकर मेडिकल डिवाइसेस पार्क के कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने कहा कि ये एशिया का सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइसेस पार्क है, जहाँ दिल के मरीजों को डाले जाने वाले मेडिकल स्टेंट्स तैयार किए जाएंगे। मेडिकल डिवाइसेस पार्क के क़याम के बाद ये एशिया का सबसे बड़ा स्टेंट तैयार करने वाला मरकज बन जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने रियासत में सनतों के क़याम के लिए सनतकारों को कई तरगीबात दी हैं, जिसके नतीजे में शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ात में बड़े पैमाने पर सनतों का क़याम अमल में लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की सनतों के क़याम के रियासत में शदीद ज़रूरत है, जिसके ज़रिए नौजवानों को बड़े पैमाने पर रोज़गार के मौक़े फराहम होंगे। वज़ीर सेहत ने कहा कि मेडिकल डिवाइसेस पार्क 20 एकड़ पर मुश्तमिल होगा, जिसमें 250 करोड़ की सरमायाकारी की जाएगी। शाहजहानंद मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ SMT की जानिब से मेडिकल स्टेंट्स तैयार किया जाएगा। राजेंद्र ने कहा कि मुल्क भर में तेलंगाना रियासत सरमायाकारों के लिए बेहतर मकाम बन गई है। तेलंगाना रियासत तेज़ी के साथ तरक्की करने वाली रियासत है, जहां 24 घंटे बिला वक्फे बरक़ी की सरबराही अंजाम दी जा रही है। वज़ीर मौसूफ ने कंपनी के ज़िम्मेदारों से ख्वाहिश की कि वह मकामी नौजवानों को तरबियत फराहम करते हुए उनकी कंपनी में रोज़गार के मौक़े फराहम करें। वज़ीर लेबर CH मल्ला रेड्डी ने अपने खिताब में कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव दूर अंदेशी के तहत सनतों के क़याम के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को मुतारिफ़ किया, जिससे मुल्क ही नहीं बल्कि बैरून ममालिक के सनतकार भी रियासत में सरमायाकारी के लिए आगे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत अवामी सेहत पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। मेडिकल डिवाइसेस पार्क के क़याम से रियासत में इलाज की सहूलतें आसान हो जाएंगी। वज़ीर लेबर ने कहा कि संगारेड्डी ज़िले में इस तरह के पार्क के क़याम से नौजवानों को रोज़गार फराहम होगा। रियासत के प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस में मैनेजमेंट कोटा BC कैटेगरी की नशिस्त पर भर्ती के लिए 3 सितंबर को ख़तई मरहले की वेब काउंसलिंग मुनक्किद की जा रही है। इस सिलसिले में कालोजी नारायण राव हेल्थ यूनिवर्सिटी के अहदेदारों ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। मेरिट लिस्ट में मुंतखब उम्मीदवारों को हैदराबाद के उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में वाक़ PGRCDE सेंटर में असल असनाद के साथ काउंसलिंग में शिरकत की ख्वाहिश की गई है। खानगी मेडिकल कॉलेजेस में मखलूआ नशिस्तों की तफसीलात को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर पेश किया गया है। अहदेदारों ने बताया कि पहले मरहले की काउंसलिंग में सीट पाने के बावजूद मुतल्लिका कॉलेज में रिपोर्ट न करने वाले उम्मीदवारों को ख़तई मरहले की काउंसलिंग में शिरकत की इजाज़त नहीं रहेगी। PUBG गेम के आदी एक 19 साल नौजवान को दिमाग में खून के इंजमाद यानी ब्लड क्लॉटिंग के सबब दवाखाने में शरीक करना पड़ा। वो वज़न में कमी, नाकिस तग़ज़िया और पानी की कमी से भी मुतासिर था। ये मामला उस वक्त मंजर आम पर आया जब उसे गुज़िश्ता रोज़ दवाखाने से डिस्चार्ज किया गया। ये नौजवान अपने दाएं पैर और हाथ को हरकत नहीं दे पा रहा था, जिस पर 26 अगस्त को उसे दवाखाने में शरीक किया गया। उसने पानी और ग़िज़ा लेने से गुरेज करते हुए अपनी तमाम तर तवज्जो इस गेम पर मरकूज़ कर दी थी। एक माह में इसका तकरीबन 3 से 4 किलो वज़न कम हो गया था। उसकी माँ ने बताया कि वो 9 बजे से रात 3 से 4 बजे तक PUBG गेम खेला करता था। ये नौजवान अखबार का हॉकर था। हिंदुस्तानी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट की सीरीज़ के दूसरे मैच की पहली पारी में हैट्रिक ली। वे टेस्ट में हैट्रिक लेने वाले हिंदुस्तान के तीसरे और दुनिया के 44वें गेंदबाज हैं। 13 साल बाद किसी गेंदबाज ने टेस्ट में ये कामयाबी हासिल की है। उनसे पहले हरभजन सिंह ने 2001 में ऑस्ट्रेलिया और इरफान पठान ने 2006 में पाकिस्तान के खिलाफ हैट्रिक ली थी। बुमराह ने जमैका के सबीना पार्क में विंडीज़ की पारी के 90वें ओवर की दूसरी गेंद पर डैरेन ब्रावो, तीसरी गेंद पर शामार ब्रुक्स और चौथी गेंद पर रोडसन चेस को आउट किया। बुमराह ने मैच में 6 विकेट लिए। उनकी गेंदबाजी की बदौलत इंडिया ने पहली पारी में 329 रन की बढ़त बना ली। हिंदुस्तानी टीम ने पहली पारी में 416 रन बनाए थे। विंडीज़ की टीम दूसरे दिन के खेल खत्म होने तक 7 विकेट पर 37 रन बना लिए थे। नाजरीन, आखिर में एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुल्क की बिगड़ती मईशत के लिए मोदी हुकूमत की बद इंतजामी जिम्मेदार, साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह का बयान। नहीं है मुल्क में मंदी, कर रही है हुकूमत हर शोबे की मदद, वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन का पलटवार। बिना सब्सिडी के LPG सिलेंडर की कीमतों में 15 रुपये 50 पैसे का इजाफा। हैदराबाद में सिलेंडर की कीमत हुई 644 रुपये। तमिली साई सुंदराजन बनी तेलंगाना की नई गवर्नर। बंडारू दत्तात्रेय बनाए गए हिमाचल प्रदेश के गवर्नर। और तेलंगाना असेंबली के बजट सेशन का 9 सितंबर से होगा आगाज।
नाजरीन, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। देखते रहिए आनंद चैनल।